آج کے نوجوان جو کہتے ہیں جناب پسند کی شادی کرنی ہے، لو میرج کرنی ہے، دیکھیں بھائی لو میرج کیا ہے، پسند کی شادی کیا ہے؟ آج کے نوجوانوں کے لیے کہتے ہیں کہ جناب جب میاں بیوی راضی ہیں تو کیا کرے گا قاضی؟ پسند کی شادی بھی کسی شے کا نام ہے، اسلام نے اجازت دی ہے پسند کی شادی کی، تو ہم ماں باپ کو ٹکرا دیں۔ میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو اسلام کی سب سے پہلی خاتون ہے۔ اسلام لانے والوں میں سے پہلی خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یاد فرمایا کرتے تھے۔ دیگر ازواج مطہرات کے سامنے آپ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو ہے نا وہ ذکر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا کرتے تھے۔ اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سب لوگ جھٹلا رہے تھے تو سیدہ خدیجہ پاک نے اس وقت میرا اقرار کیا تھا، اس وقت مجھے نبی ماننا تھا۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ نبی ہیں، یا نکاح کی امید یا نکاح کا ارادہ کب ہوا تھا؟ یہ مکہ میں ایک میلہ لگتا تھا، یا جو سمجھ لے کہ کوئی بازار تھا جہاں پہ صرف عورتیں ہی عورتیں آتی ہیں، کوئی مرد نہیں جاتا تھا۔ تو مکہ میں وہاں پہ عورتیں ہی عورتیں جمع ہیں، تو ایک صاحب علم، صاحب کتاب، یعنی کہ پہلے تورات زبور کا، انجیل کا وغیرہ کا علم رکھنے والا بندہ، تو اس نے آ کر کہا کہ بیبیوں میری بات سنو، یہاں پہ عورتوں کے میلے میں، عورتوں کے اس بازار میں کسی مرد کا کام نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات جو آج کہنے آیا ہوں وہ میں گھر گھر جا کر نہیں کہہ سکتا تھا، سوچا آج تم سب کو یہاں پہ کہہ دوں کہ میں، آپ جانتی ہیں کہ میں کتاب کا علم رکھنے والا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ وہ آخری پیغمبر، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اس نبی کے ظہور کا وقت ہو گیا ہے۔ اب وہ مکہ والی تھی، وہ سرداروں کی بیویاں تھی، سرداروں کی بیٹیاں تھی، سرداروں کی بہنیں تھی، عیش و عشرت میں نازوں کے ساتھ پلی ہوئی۔ اب ان کو یہ بات چڑھی کہ جناب یہ ہماری عورتوں کے پاس یہ مرد کہاں سے آ گیا؟ ہر کسی نے جھٹکنا چاہا، اس کو بگانا چاہا، اپنے اپنے طریقے سے جو بھی انہوں نے اس وقت کہا۔ تو سیدہ خدیجہ پاک فرماتی ہیں کہ سب نے اس کو جھٹکا، ڈانٹا، لیکن میں نے وہ بات پلے سے باندھ لی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے وہ شرافت کے سارے لباس اوڑے ہوئے تھے جو آج ایک مسلمان عورت کے لیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پردہ بھی آپ کرتی تھی، حیا بھی آپ رکھتی تھی، کسی غیر مرد محرم سے، نامحرم سے جناب کوئی میل جول نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ حالانکہ جب آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا تو آپ کے مکے کے سرداروں میں سے تھی، مال و دولت والے لوگوں میں سے تھی، تو آپ کا مال تجارت نامی گرامی لوگوں کا تھا کہ فلاں بندہ جناب بڑا امیر ہے، تو اب ساری تجارت جو ہے انہوں نے خود سنبھالی۔ تو اب یہ نہیں کہ وہ خود مال لے کر جاتی ہیں، بلکہ آپ کی ایک کنیز تھی جو سارے وہ جس کو بھی مال دینا ہوتا، اور لوگ فخر سمجھتے تھے کہ جناب ہم خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر جا رہے ہیں، اس بات کا فخر سمجھتے تھے۔ وہ نفیسہ نامی وہ ایک غلام تھی، کنیز تھی، وہ سارے معاملات کو وہ ہینڈل کرتی تھی، جس کو مال دینا ہوتا وہ آ کر بتاتی، نفع منافع طے ہو جاتا اور مال اس کے حوالے کر دیا جاتا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کفالت تھے۔ تو آپ کے چچا نے کہا کہ اے بیٹے محمد، آپ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر چلے جائیں۔ محبوب نے فرمایا کہ میں کسی کو جا کے نہیں کہوں گا، اگر میری قسمت جو مجھے ہے وہ اللہ میرا عطا فرما رہا ہے تو مجھے وہ کافی ہے۔ تو بس انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا، تو آپ کے چچا کا یہ ارادہ تھا، تو اللہ نے بھی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا، ایک غلام بھی تھا میسرہ، ان کو بھیجا کہ محبوب سے جا کر کہیں کہ وہ میرا مال جو ہے نا یہ لے جائیں تجارت کے لیے۔ چنانچہ محبوب علیہ السلام جب مال لے گئے اور وہ میسرہ جو غلام تھا، تو خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ تو چل گیا تھا کہ وہ ایک شخص ہے جو بڑا امین ہے، جو بڑا زبان کا پکا ہے، اپنے قول کا سچا ہے،
बड़ा शराफत वाला बंदा है। तो मक्के में चर्चे होने लगे थे ना महबूब अलैहिस्सलाम के। तो सैयदा खदीजा फरमाती कि मुझे शक तो हो गया, मुझे पता चल गया कि जिसका जिक्र मैंने वहां मेले में सुना था ये वही बंदा है। तो ये माल तिजारत का भेजना बस ये कि देखना था, कि कन्फर्म करना था कि ये बात वही है कि नहीं। माल तिजारत के लिए अपने गुलाम मैसरा को भेजा और कहा कि कदम ब कदम देखना कि महबूब अलैहिस्सलाम को ये मोहम्मद नामी जो शख्स हैं, देखना कि इनके साथ क्या वाक़या रोनुमा होते हैं या क्या। वो गए, माल लेकर गए। तो जहाँ पे मंडी में सारे लोग अपने अपने बुतों के नाम की कसमें खाकर माल बेच रहे थे, जो लोग आते कहते जनाब आपका माल सच्चा है तो आप कसम उठाएं, लात की, मनात की, उज़्ज़ा की। महबूब ने फरमाया मैं तो उनको पहले नहीं मानता, मैं उनकी कसमें क्यों उठाऊंगा, मैं तो पहले ही नहीं मानता, उनकी कसमें मैं क्यों उठाऊंगा। माल लेना है तो लो, वरना अपने रास्ते पकड़ो। हजूर जिसको मना कर देते वो हजूर के पीछे आ जाता, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम ने जो माल रखा वो कहा कि जनाब ये अच्छा है, ये इस दाम में, ये इस दाम में, हर कैटेगरी अलग अलग कर दी। आज तो हमारे लोग ऐसा करते हैं ना, आम की पेटी हो तो अंदर गले सड़े होते हैं, ऊपर जनाब बड़े सोने रखे होते हैं, अमरूदों की पेटियां भरी होती हैं, माल्टों के पल्ले, जो कुछ भी है। तो हम क्या करते हैं जनाब, अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसमें कितने दिन हम वो माल खा ले किसी को धोखा देकर। धोखा जो इसको हम देते हैं वो सूद समेत कर समझ ले कि और ज़्यादा बढ़कर हमारे पास आ जाता है। तो अमाल को कपड़ा है, वो मालो दौलत है, चीज़ है जो जिस कीमत की है उसी हिसाब से बेचनी चाहिए। अगर वो हमारे पास पड़ी पड़ी ख़राब हो गई है, उसकी कीमत हमें चाहिए कि हम कम करके बेचें। मैं नहीं कह रहा ये मेरे महबूब की सुन्नत है, ये मेरे महबूब का बताया हुआ तरीका है। महबूब ने सारा माल अलग कर दिया, ये जनाब गीला है इसका ये रेट है, ये खुश्क है इसका ये रेट है, ये अच्छा है इसका ये रेट है, ये कम है इसका ये रेट। वो गुलाम कहता है मैं हैरान हूँ, जहाँ पे लोग सारा मिक्स करके बेच रहे थे और ये कैसा शख्स है जिसने जनाब अलग अलग करके रख दिया है। तो महबूब अलैहिस्सलाम की जब आके आदतें हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताई, तो खदीजा और उनकी एक सहेली पास में बैठी थी। पूछा भी सुना कितना मुनाफा हुआ। तो गुलाम मैसरा कहता है कि तुम मुनाफे को छोड़ो, तुम ये बस सुनो जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मंडी में हम जब जा रहे थे तो रास्ते में हम एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, तो एक राहब वो फलां इलाके का वो मेरे पास आया और कहा कि ऐ मैसरा आज किसको साथ ले आए हो। पहले भी वो तिजारत के लिए माल लेके जाते तो मशहूर थे ना। मैसरा आज कौन आया तेरे साथ? कहने लगा जी मक्के का फलां बंदा में से है और बड़ा नेक बंदा है, बड़ा सीरत का पक्का है, सच्चा है, अमीन है, फलां फलां जो उसकी जुबान में आया उसने अच्छाई बयान की महबूब की। तो वो राहब कहने लगा ऐ मैसरा इसका ख्याल रखना, ये कोई आम बंदा नहीं है, इस दरख्त के नीचे हमारे इल्म के मुताबिक हमारी किताबों ने जो बताया है, जो इस दरख्त के नीचे आम कोई बंदा बैठ ही नहीं सकता, जो यहाँ बैठेगा वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा। ऐ मैसरा तो इसका ख्याल रखना, ये ना समझना कि कोई आम बंदा तेरे साथ माल तिजारत लेकर जा रहा है, तुम इसका ख्याल रखना। कहते तो मेरे दिल में उस वक्त ही मोहब्बत पैदा होने शुरू हो गई। मंडी में पहुंचे, मंडी के हालात देखे, वापस जब आए मंडी के हालात भी आकर बताए कि जनाब सारा माल खरा करके बेचा है। और लोग जिसको महबूब मना करते थे, अब खदीजा कुबरा की बारगाह में ये बातें बता रहे कि जिसको नबी मना करते थे वो सारे लोग जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा खींचे चले आते थे। लोग कसमें उठा उठा के माल बेच रहे थे, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम ने कोई कसम नहीं उठाई, लेकिन माल जो है ना पहले से ज्यादा हमें मुनाफा हुआ है। और जब हम वापस आ रहे थे, गर्मी का वक्त था, गर्मी के दिन थे, तो जहाँ हमें रास्ते में धूप लगनी थी, सहरा था, वहां पे मैं देख रहा था कि आपके ऊपर साया ही क्यों था। जब दूसरी जगह हम पर धूप थी तो आपके ऊपर साया था। जब मैंने ऊपर देखा तो एक बादल का टुकड़ा था, जहां जहां नबी जाते हैं वहां पे उनका ऊपर वो साया किया जाता है। तो फिर मेरा भी ये ज़ौक़ था, शौक था कि मैं महबूब के साथ साथ चलूं। जब ये सारे वाक़यात आकर सुनाए तो दिल में और ख्याल पैदा हुआ, फिर समझ गई कि वो वही है जिसका जिक्र उस वक़्त वो किताब के इल्म रखने वाले ने किया था। चुनाचे चंद दिन के बाद पैगाम निकाह भेजा, सैयदा खदीजा पाक ने निकाह भेजा। आपकी पहले 2 दफ़ा शादी हुई और 2 दफ़ा आप बेवा हो गई, यानी कि शौहर जो थे वो वफात पा गए। तो बहुत सारे लोगों ने, मक्का के नामी ग्रामी सरदारों ने, चौधरियों ने, वडेरों ने पैगाम भेजे निकाह के, जनाब हमारे साथ निकाह कर लें। लोगों ने पैगाम भेजे निकाह के लिए, लेकिन आपने मना फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई। गोया कि वो इस इंतजार में थी जो बात वो पहले सुन चुकी थी। अब जब के पता चल गया, हर चीज वाज़ेह हो गई कि जिसका इंतजार था ये वही है, तो हजरत खदीजा कुबरा ने खुद पैगाम निकाह भेजा। जब पैगाम निकाह लेकर आए तो अर्ज किया गया कि फलां खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो निकाह करना चाहती हैं। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने
चचा अबू तालिब से पूछ कर बताता हूं। अब यहां पे जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं आज के नौजवानों के लिए, कहते कि जनाब जब मियां बीवी राजी है तो क्या करेगा काजी है? पसंद की शादी भी किसी शय का नाम है, इस्लाम ने इजाजत दी है पसंद की शादी की, तो हम माँ बाप को ठुकरा दें। अब देखें महबूब अलैहिस्सलाम साहिब इख्तियार हैं, अगर नबी चाहते महबूब चाहते तो कह देते हाँ भी ठीक है मुझे कबूल है मैं निकाह करता हूं, लेकिन नहीं, महबूब अलैहिस्सलाम साहिब इख्तियार हैं और ये कहा कि मैं अपने चचा से पूछता हूं, और ये कहकर हम इस गुनाहगार उम्मत को दर्श दिया कि ए नौजवान लड़कों और लड़कियों, ए नौजवान बेटों और बेटियों, कि जब भी निकाह का मसला हो तो अपने माँ बाप की रजामंदी के साथ ये मामला तय करना। ये इस बात का हमें दर्श दिया। तो क्या महबूब अगर कह देते कि मैंने निकाह करना है तो हज़रत अबू तालिब ने मना कर लेना था? नहीं करना था मना, लेकिन ये बात हमें ये दर्श दिया, वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें बड़े औखे वेले में पाला, बड़ी मुसीबतें बड़ी मुशक्क़तों में पाला है, तो ये नहीं कि जनाब आज हम इस अहम मौके पर उनकी रजामंदी, हज़रत अबू तालिब ने हाँ भर दी, निकाह हो गया। उस वक़्त सैयदा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल और महबूब अलैहिस्सलाम की 25 साल की उस वक़्त उम्र थी। तो महबूब अलैहिस्सलाम की सैयदा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजाए मोहतरमा, आपने बड़ा साथ दिया। जब निकाह हो गया तो आप अर्ज करती हैं कि ये मेरा मालो दौलत सब कुछ महबूब के नाम पर कुर्बान कर दिया। अब वो चौधरियों के घर में पली बड़ी, सरदारों के घर में रहने वाली, लेकिन यहाँ जब नबी की ज़ौजा बनकर आई हैं तो आपने कपड़े भी धोए हैं, घर में झाड़ू भी दिया है, खाना भी पकाया है, सारा कुछ कुर्बान कर दिया। रवायत में आता है कि सिर्फ एक जोड़ा जो आप पहना करती थी वही जिस्म पर बचा, बाकी सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान कर दिया। महबूब फिर क्यों ना याद करते कि मुझे खदीजा के माल ने उस वक्त फायदा दिया, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मुझे जब लोगों ने झुटलाया सैयदा खदीजा ने मुझे उस वक्त माना, उस वक्त मेरा इकरार किया। तो आपकी वफात नबूवत के 10वें साल हुई है। शब अबी तालिब में आप तकरीबन 3 साल रहे हजूर अलैहिस्सलाम, और आपके साथ ही वो हज़रत खदीजा कुबरा थी। 3 साल तक वहां पे रहे, और ये मेरा गुमान है, हो सकता है और बात भी हो सकती है, मैं सुबह पढ़ रहा था तो दिल में यह ख्याल हुआ कि 10 नबूवत के 7वें साल, नबूवत के 7वें साल ये मामला पैदा हुआ शब अबी तालिब में। मक्का वालों ने सारों ने बाइकाट कर दिया, खाना पीना, और रवायत में आता है कि जब वो महबूब अलैहिस्सलाम के अहले खाना के ख़ानदान के जो साथ में बच्चे थे, जब वो रोते थे तो आवाज़ें बाहर जाती थी, किसी को तरस नहीं आया। बड़ा औखा वक्त जो है ना वो शब अबी तालिब में गुजरा है। जितना खाना पीना था कितने दिन चल सकता था, खत्म हो गया। लेकिन फिर बाद में 3 साल तक वहां पे रहे, ना कोई बाहर जाना, ना कोई दुकान से, यूं समझ आज के दौर में ना कोई दुकान से बंदा बाहर कोई चीज लेके आ सकता है, ना कोई चीज वहां से जा सकती है, कुछ होने के बावजूद भी। उस दौरान महबूब अलैहिस्सलाम और आपके अहले खाना ने दरख्तों के पत्ते और दरख्तों की छाले जो है ना, खाले ये खाकर गुजारा किया है। और मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, मेरा गुमान ये है, हो सकता है कोई और भी हो, कि 3 साल शब अबी तालिब में रहे, नबूवत के 7वें साल से लेकर 10वें तक, और 10वें साल में आपकी वफात हुई है। ये 10वें रोजे में, रमजान मुबारक का ये 10वां रोजा था। तो ये कहाँ वो पहले नाजों से पली, कहाँ वो पहले चौधरियों के घर में रहनी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और अब जब के ये खाना मुयस्सर आया, दरख्तों के पत्ते और छाले, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ी होगी और आपका विसाल हुआ होगा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, इस्लाम की पहली औरत जिन्होंने महबूब अलैहिस्सलाम का इकरार किया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जब महबूब अलैहिस्सलाम गारे हिरा में थे, अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल होना थी, वहाँ पे इबादत के लिए जाते थे, तो वहाँ पे थे और कुछ देर गुजर गई, कुछ लम्हे गुजर गए कि महबूब घर में तशरीफ नहीं लाए। तो सैयदा पाक ने कहा कि चलो आज महबूब का खाना वहीं पे छोड़ आते हैं, वहीं को दे चले आते हैं। तो महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा ने खाना बनाया, पानी वगैरह साथ लिया, और जबकि वो गारे हिरा की तरफ जा रही थी तो अभी पहुंची नहीं है, करीब है, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आ गए और आकर अर्ज किया, या नबी खुदा, अल्लाह की तरफ से सलाम है, और अल्लाह ने यह पैगाम भेजा है कि आपके पास सैयदा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ रही हैं, और उनके पास कुछ खाना है और कुछ पीने के लिए मशरूब है। जब वो आपके पास आ जाएं तो उनको अल्लाह का सलाम कह देना। अल्लाह ने यह पैगाम भेजा है कि वो आपके लिए खाना और पानी वगैरह लेकर आ रही हैं, तो उनको मेरा सलाम कहना। अल्लाह ने पैगाम भेजा है।
یہ پیغام دیے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب اللہ کا پیغام دیا تو یا رسول اللہ میرا بھی سلام ان کو کہہ دینا۔ جبریل امین نے بھی کہا جی میرا بھی سلام کہہ دینا۔ اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خوشخبری دے دینا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انس اور پیار کی وجہ سے اللہ نے جنت میں موتیوں والے ایک گھر کی خوشخبری عطا فرما دی ہے۔ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت، اور بعد میں یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا آپ کی صاحبزادی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی۔ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی ہیں جو خاتون جنت ہوں گی اور جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اللہ ہمیں ان کی سیرت طیبہ پر ہمیں اور ہماری اولادوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے صدقہ سے ہمارے جو پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج کا دن 10 رمضان المبارک ان کا یوم وصال تھا، تو اس حوالہ سے ہم نے یہ موضوع رکھا تھا، ذکر کیا، اللہ قبول و منظور فرمائے۔